राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। রাধা বল্লভ শ্রীহরিবংশ। রাধে রাধে বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই রাধা রানীর কৃপায় ভালো এবং সুস্থ আছেন। আজ আমরা চলে এসেছি ব্রজধামের আর এক দিব্য, অলৌকিক এবং লীলাস্থান দর্শন করতে। এই স্থানে রয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অগণিত লীলা এবং তার প্রমাণও আজ জল জল করছে। যশোদা নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাললীলার সাক্ষী তো পুরো ব্রজমণ্ডল রয়েছে, কিন্তু গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলার সাক্ষী তা বর্ষানার প্রাচীন লীলাস্থলগুলি দর্শন করলেই বোঝা যায়। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বর্ষানা থেকে কিছুটা দূরে সখীগিরি পর্বতে, যা আলতা পাহাড়ি নামে পরিচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের অনেক লীলার সাক্ষী এই সখীগিরি পর্বত। বন্ধুরা, রাধা রানীর 8 জন প্রিয় সখী ছিলেন, যাদের অষ্টসখী বলা হয়। তারা হলেন ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রংদেবী, তুংবিদ্যা আর সুদেবী। এই অষ্টসখীর মধ্যে রাধা রানীর সব থেকে কাছের এবং প্রিয় সখী ছিলেন ললিতা সখী। আর আমরা আজ যেখানে দর্শন করতে এসেছি এই সখীগিরি পর্বতে, ললিতা সখীর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল এবং দাপর যুগে সম্পন্ন হওয়া সেই বিবাহের সমস্ত চিহ্ন আজও রয়ে গেছে। ঠিক এই জায়গায় বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে যে পাথরটা রাখা আছে এবং লেখা আছে, আপনারা পড়তে পারবেন। এটাই হলো বাহুলাস্থলী। শ্রী ললিতা সখী বাহুলাস্থলী, পিছলতি শিলা। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে খেলাধুলো করতেন এই পর্বতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সখীদের চিত্র অঙ্কন করা রয়েছে এখানে। রাধারানী সহ চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিপূর্ণ এই পর্বত রাধারানী তৎসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের খুবই খুবই প্রিয় একটি জায়গা। এখানে ছোটবেলায় খেলতে খেলতে একবার সমস্ত সখীরা মিলে এই বিয়েটা রচনা করেন। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খেলা করছিলেন, তো তখন শ্রীকৃষ্ণের পিছনে বসেছিলেন রাধারানী এবং তারা সখীরা পরিকল্পনা করেন যে আজ ললিতা সখীর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে দেওয়া হবে। তাই তারা রাধারানীকে সরে যেতে বলেন এবং রাধারানী যে স্লিপ খেয়ে সরে গেছিলেন, সেই ফিসলতি শিলা আজও রয়েছে। আমি দর্শন করাবো আপনাদের। তো রাধারানী সরে যাওয়ার পরে সেই জায়গায় এসে যান ললিতা সখী এবং সখীরা মিলে ললিতা সখীর চুন্নির সাথে শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর গাঁট বেঁধে দেন এবং ললিতা সখীর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে হয়ে যায়। বন্ধুরা, আমি সংক্ষেপে বলছি। পর গোপী সহ সমস্ত গোয়ালবাল, সখা, মিত্র সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধরে বসেন। এই যে দেখছেন আপনারা, এইখানে আলতা পরেছিলেন। আজও ভক্তরা এসে এখানে আলতা নিবেদন করেন। তো যেটা বলছিলাম, সখা, গোয়ালবাল এবং ব্রজবাসীরা ঠাকুরজিকে ধরে বসেন এবং বলেন, লালা अब तेरो तो ब्याह हो गए हो, अब हमारो भी मुंह मीठा करवानो पड़ेगो। ঠাকুরজি বলেন, আরে এই পাহাড় জঙ্গলে আমি কিভাবে তোদের মিষ্টি খাওয়াবো? কিন্তু সখা, মিত্র এবং গোপীরা ছাড়তে নারাজ। তাই ঠাকুরজি এখানে সবাইকে 56 ভোগ খাইয়েছিলেন, যার প্রমাণস্বরূপ এখনো 56 কাটোরা, মাত্র 56টা বাটির স্বরূপ এই পর্বতে থেকে গেছে। তাই আপনারা যারা বর্ষানা আসবেন, অবশ্যই এই সমস্ত দিব্য লীলাস্থান দর্শন করে সৌভাগ্যবান হবেন। বন্ধুরা, আমরা এই স্থানের সম্পূর্ণ লীলা কথা বিস্তারিতভাবে জেনে নেব এখানকারই একজন ব্রজবাসী পণ্ডিতজির থেকে। ललिता सखी की देखिए भैया, इस पर्वत का नाम है सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी। इसमें दर्शन करने का 5 दर्शन है: चित्रशिला, विचित्रशिला, पुष्कर कुंड, माणिक शिला और 56 कटोरा। ये चित्रशिला है, इसको फिसलनी शिला कहते हैं। यहाँ जो बामन द्वादशी भाद्र मास से आती है, उस दिन ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान को ब्याह हुआ। विवाह सभी सखियां मिलकर के ललिता जी का 16 श्रृंगार करती हैं। इस शिला के अंदर मेहंदी का, बंसी का, मुकुट का, चरण चिन्ह का, प्रेम कटारी का, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का दर्शन भी विराजमान है। इसी के अंदर आप दिखाइए उसको, दर्शन देखिए। ये है मेहंदी के दर्शन, ये दिख रहे हैं जो लाल वाले, ये कृष्ण जी को चरण
ये राधा रानी चरण, ये प्रेम कटारी है, ये बंसी है कृष्ण भगवान, और ये कृष्णा जी है, ये राधा जी बाल रूप के दर्शन छोटे छोटे, ठीक है। और ये मुकुट है कृष्ण भगवान का, ये मुकुट है। तो तुम्हें ये 5 दर्शन है। तो यहाँ जो ललता जी और कृष्ण भगवान को ब्याह हुआ वो खेल ही खेल में हुआ, खेल खेल में, जैसे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं ना, ऐसे रोज ठाकुर जी खेले ग्वाल बालों के साथ, राधा रानी के साथ गोपियाँ खेलती थी। तो एक दिन कन्हैया बोले आज कछु अलग खेल खेले। तो गोपी ग्वाल बाल सोच में पड़ गए, बोले कन्हैया कभी तू मटकी फोड़े, कभी तू माखन चोरे, कभी चीड़ चुरावे, तू बड़ा नटखट छलिया है, आज कौन सा खेल खेले हो। तो ठाकुर जी बोले भैया एक जना दूल्हे बने हो, एक जना दुल्हन बने। ऐसे ही बैठे थे तो राधा रानी भी पास में बैठी थी, इधर ललता जी और सारी सखी सब बैठी थी इधर। तो राधा रानी के अष्ट सखियों में एक सखी थी विशाखा सखी, उनके अंदर एक भाव आया कि इस पर्वत पर कुछ लीला होने वाली। तो उन्होंने ललता जी का पल्लू लेके और कृष्ण भगवान के पीताम्बर में बांध दिया। ललता जी के साथ जो नैनों के सहारे होते हैं ना, तो राधा रानी का तो नंबर तो राधा रानी का था, लेकिन एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनेही, आत्मा एक ही है और एक आत्मा से ब्याह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए 2 आत्मा चाहिए, दो चाहिए। तो उन्होंने ललता जी के साथ गठबंधन करके, ललता जी के साथ विशाखा जी ने और राधा रानी सभी सखियों ने गठबंधन कर लिया। तो मतलब राधा रानी थोड़ी पीछे को सरक गई, और जैसे ही वो पीछे को सरकी तो फिसलनी सिला बन गई, और ललता जी के साथ में गठबंधन हो गया, और ललता जी का पल्लू लेके विशाखा जी ने और कृष्ण भगवान के पीताम्बर में बांध दिया। ऐसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में खुश हो रहे हैं, वो नाच रहे कूद रहे, कह रहे हैं कन्हैया ब्याह करो, सखी गिरी पर्वत पे वहां चलते हैं। तो वो उनके नारद के द्वारा पुष्कर जी को संदेशा हुआ, पुष्कर जी भागे भागे आए, अरे ब्रह्मा जी सुनो। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है बताओ। अरे वहाँ कन्हैया सखी गिरी पर्वत पर ब्याह कर रहे हो, वहां चलते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का वेश धर के फेरा डालने के लिए जाएंगे, आप जल लेकर के जाओगे, क्यों चिंता करते हो, चलते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धर के फेरा डालने के लिए आए, पुष्कर जी जल लेके आए, देवता फूल बरसाने लगे, ब्रजवासी ग्वाल बाल नाचने गाने लगे। ऐसे उनको ब्याह हुआ। अब ब्याह के बाद में ब्रजवासी ग्वाल बाल बोले भैया कन्हैया अब तेरे ब्याह है वो, कछु मोमीटो करवा दे, कछु पाल्टी फाल्टी दे। तो पहले पाल्टी होती थी माखन मिश्री दूध दही ऐसा सब कुछ होता था। तो ठाकुर जी बोले भैया मैंने कोई शहर में कोई रेस्टोरेंट में तो ब्याह करो ना, इन पहाड़ पत्थरन में ब्याह करो, वो भी चोरी चुपके चुपके, भैया मेरे पास तो कोई व्यवस्था है ना। तो ग्वाल बाल ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया मोह तो मीठो करवानी पड़े वो। तो ठाकुर जी ने जो 56 कटोरे हैं ना ऊपर, उसमें सब ब्रजवासी ग्वाल बालों को 56 भोग का प्रसाद खिलाया। बोलो 56 कटोरा की। अब उसके बाद में ब्रह्मा जी बोले भैया कन्हैया अब तेरे ब्याह है वो, हम चलें कहीं, हमें जगह बताओ, स्थान दो। तो ठाकुर जी बोले आप जाओ बरसाना धाम, वहाँ ब्रह्माचल पर्वत के नाम से अपना स्थान ग्रहण करो, आपके ऊपर श्री राधा रानी विराजेंगी, जो मेरे भक्तगण श्रद्धालु लोग आए उनको दर्शन दो और उनका कल्याण करो। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। पुष्कर जी बोले एक छोटा सा स्थान हमें बता दो। ठाकुर जी बोले आप इसी सखी गिरी पर्वत आलता पहाड़ी पे विराजो, जो मेरे भक्तगण श्रद्धालु लोग आए उनको दर्शन दो और उनका कल्याण करो। तो इस वमूल के नीचे ऊपर जो वमूल है उसके नीचे पुष्कर जी हैं, तो पुष्कर जी को स्थान यही दिया है। अब एक माणिक शिला है, चुंदरी शिला जिसे बोलते हैं, वहां ठाकुर जी ने मान भी किया है, जिसे माणिक शिला है। एक वर्णन ऐसा आता है कि ठाकुर जी यहाँ जो चुंदरी शिला है ना, तो ठाकुर जी यहाँ गाय चरा रहे थे, तो राधा रानी अपनी अटारी से उनको निहार रही थी, देख रही थी। तो उनके अंदर एक भाव आ रहा था कि मैं भी कन्हैया के पास चली जाऊं। तो हवा जैसे तेज हवा चली तो उनकी चुंदरी उड़ के और ठाकुर जी के चरणों में आके पड़ी। तो वहां उस शिला पे जो पड़ी तो वो शिला पे चुंदरी का छाप बन गया। तो वो जैसे सूरज की किरण पड़ती है ऐसे मोती की तरह चमकती है, ऐसा वो चुंदरी शिला का वर्णन है। बोलो राधा रानी की, ललता सखी की। अब सुनिए कि कहीं चित्र विचित्र फिसलनी शिला जहाँ चिन्ह महावर आलता का मेला हो, ललता को ब्याह कन्हैया के साथ सब सखियन ने छापे जब मेहंदी के आग कित भोजन थाली कटोरा निशान जित खावे बनवारी दर्शन अब राम। अब तक है निशान योग बीते अनेक न मिटत निशान, चल चल ऊंचे गाम लेके राधा को नाम, सखी ललता के गाम चल करके प्रणाम। यहाँ नित्य विहार करें राधा रमण, कभी आती आवाज निपुण खनन खनन,
यहाँ करना न शोर कोई डाली न तोड़, कण कण में विराजे किशोरी किशोर, कण कण में विराजे किशोरी किशोर। बोलो राधा रानी की, ललता सखी की, सभी भक्तन की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। टीकम पंडित जी ऊंचा गाम। राधे राधे। जय श्री राधे।